سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں سیلابی صورتحال اور شہریوں کی پریشانی کا نوٹس۔ ضلع انتظامیہ کو نکاسیاب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ کہتے ہیں شہریوں کو تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے کوئی سستی نہیں دکھائی جائے۔ مزید تفصیلات بتائیں گے ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا۔ جی بتائیے۔ حسن رضا سے تکنیکی وجوہات پر رابطہ منقطع ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور میں سیلابی صورتحال اور شہریوں کی پریشانی کا نوٹس۔ ضلع انتظامیہ کو نکاسیاب کے فوری اقدامات کی ہدایت۔ کہتے ہیں شہریوں کو تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے کوئی سستی نہ دکھائی جائے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور کی سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سڑک پر چلنا بہت مشکل ہو چکا تھا اور اب وزیراعظم کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے حسن رضا۔ جی حسن بتائے گا، وزیراعظم کی جانب سے نوٹس لے لیا گیا ہے؟ بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں سیلابی صورتحال اور شہریوں کی پریشانی کا نوٹس لیتے ہوئے صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کو نکاسیاب کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی برساتی صورتحال میں تمام متعلقہ اداروں کی ٹیموں کو متحرک کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ شہریوں کو تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے کوئی سستی نہ دکھائی جائے اور وزیر اعظم کی برساتی صورتحال کے پیش نظر مسلسل مانیٹرنگ اور انتظامی اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ 24 گھنٹے کی بنیاد پر نکاسیاب کے انتظامات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ برسات اور سیلابی پانی کے پیش نظر ٹریفک کی روانی اور متبادل راستوں کی بروقت نشاندہی یقینی بنائی جائے اور وزیر اعظم کی ملک کے دیگر علاقوں میں بھی حفاظتی اور پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شکریہ حسن رضا۔ بارش کے 3 سپیل شہر میں جل تھل ایک ہو گیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ شہر کے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہونے سے موٹر سائیکلز، گاڑیاں اور رکشے بند ہو گئے۔ سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ پر 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، جبکہ کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ شہر لاہور میں بادل جم کر برسے۔ 24 گھنٹوں میں بارش کے 3 سپیل برس چکے۔ مختلف اوقات میں مجموعی طور پر 6 گھنٹے 47 منٹ تک بارش ہوئی۔ شہر کے نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ڈیوس روڈ، شملہ پہاڑی، لکشمی چوک میں کئی فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ چوک ناخدا، سمد آباد، اچھرا، کلمہ چوک میں بھی جل تھل ایک ہو گیا۔ کہنا ٹاؤن شپ، گلشن راوی، بڈن روڈ، کرتبہ چوک، جوہر ٹاؤن، گلبرگ کے علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور رکشے بارش کے پانی میں پھنس کر رہ گئے۔ کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ایئرپورٹ کے علاقے میں 260 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی میں 256، پانی والا تالاب 254، کرتبہ چوک 252، گلشن راوی میں 236 ملی میٹر بارش ہوئی۔ نصر ٹاؤن میں 231، علامہ اقبال ٹاؤن میں 212، تاج پورہ میں 191، جوہر ٹاؤن میں 176 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ جیل روڈ پر 171.5، مغل پورہ میں 165، چوک ناخدا میں 153، گلبرگ میں 142 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی شدید متاثر رہا۔ لیسکو کے 90 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ لاہور کے متعدد علاقے بجلی سے محروم رہے۔ دوسری جانب ٹاؤن شپ میں بجلی کے تار ٹوٹ کر بارش کے پانی میں گر گئے۔ کرنٹ لگنے سے 15 سالہ حمزہ یوسف جام بحق ہو گیا، جبکہ 14 سالہ علی عباس زخمی ہو گیا۔ سوئے اصل اور علی حسین آباد میں 2 گھروں کی چھتیں گرنے سے 5 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا۔ شہر میں بارش کے طوفانی سپیل نے اداروں کی کارکردگی کو عیاں کر دیا۔ موسلا دھار بارش نے کلمہ چوک انڈر پاس کو تالاب بنا دیا۔ کلمہ چوک منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ روپے کی لاگت آئی۔ دوسری طرف مبین شہید انڈر پاس میں پانی بھرنے سے گاڑی ڈوب گئی، جبکہ مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک روانی شدید متاثر۔ بارش کے طوفانی سپیل سے اداروں کی کارکردگی عیاں ہو گئی۔ شہر میں حال ہی میں بننے والے منصوبے بھی زیر آب آ گئے۔ کلمہ چوک انڈر پاس میں 3 فٹ تک بارشی پانی جمع ہو گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے 16 مئی کو ہی اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا۔ CBD پنجاب نے منصوبے کی ری ماڈلنگ پر کام کیا تھا۔ منصوبے پر 4 ارب 20 کروڑ پہ لاگت آئی۔ پری مونسون بارش میں 4 ارب 20 کروڑ پہ ڈوب گئے۔ سیوریج سسٹم پر خطیر رقم خرچ کرنے کے باوجود نکاسیاب بر وقت ممکن نہ ہوا۔ کلمہ چوک انڈر پاس کی سیوریج لائنیں بند ہونے سے بارشی پانی جمع ہوا۔ انڈر پاس سے گزرنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پانی میں بند ہو گئیں۔ شہر میں طوفانی بارش کے باعث کئی انڈر پاس پانی میں ڈوب گئے۔ کیپٹن مبین شہید انڈر پاس بھی پانی میں ڈوب گیا۔ انڈر پاس میں 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا۔ ایک گاڑی بھی انڈر پاس میں ڈوب گئی۔ مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن کو سگنل فری بنا دیا، مگر نکاسیاب کا کوئی انتظام نہ کیا گیا۔ بارشی پانی کا بروقت نکاس نہ ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، جس سے شہری اذیت میں مبتلا رہے۔
शहर में बारिश के तूफानी स्पेल के नुकसानात। गुलबर्ग में सर्विस रोड बैठने से वासा की वाटर सप्लाई लाइन टूट गई है। गुलशन रावी नाला ओवरफ्लो होने पर गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया और तेज बारिश के बायस केनाल रोड पर दरख्त गिर गया। प्री मानसून के तूफानी स्पेल से शहर में तबाहकारियां। बारिश के बायस गुलबर्ग मेन बुलेवर्ड पर सर्विस रोड बैठ गई। प्राइवेट डेवलपर्स की जानिब से प्लाजा तामीर किया जा रहा है। प्राइवेट डेवलपर्स की जानिब से सर्विस रोड के नीचे पाइलिंग की जा रही थी। पाइलिंग में बारिश का पानी जमा होने से सर्विस रोड बैठ गई। वासा की 10 इंच की पाइप लाइन भी सड़क बैठने की वजह से टूट गई। एलडीए और वासा का नुकसान प्राइवेट डेवलपर से रिकवर करने का फैसला। एलडीए ने प्राइवेट डेवलपर्स को नुकसान की रकम जमा करवाने का नोटिस जारी कर दी। शहर की मरकजी ड्रेनों की डिसल्टिंग में कोताही भी सामने आ गई। गुलशन रावी नाला ओवरफ्लो होने से गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। इलाका मकीनों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ा। कैनाल रोड पर जेल इंटरसेक्शन के करीब दरख्त गिरने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हुई। ट्रैफिक वार्डन्स ने अपनी मदद आप के तहत दरख्त को हटाया और कैनाल रोड पर ट्रैफिक बहाल की। गुलबर्ग में सड़क बैठने के मामले पर कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा का नोटिस। प्राइवेट डेवलपर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। बदामी बाग सब्जी मंडी भी बारिश के पानी में डूब गई। इंतजामिया के नकासियात के तमाम दावे पानी में बह गए। कई फीट जमा बारिश के पानी में सब्जियां तैरती रहीं। कीचड़ और सब्जियों के बाकियात ने माहौल ताफुनज़दा कर दिया। शहर में मूसलाधार बारिश ने हर जानिब पानी ही पानी कर दिया। बदामी बाग सब्जी मंडी नदी नाले का मंजर पेश करने लगी। सब्जी मंडी में कई फीट बारिश का पानी जमा हो गया। गंदगी और बारिश के पानी ने खरीदारों और आड़तियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सब्जी मंडी की सूरत हाल इंतजामिया की नारों से मुसलसल ओझल है। बारिश के पानी, कीचड़ और सब्जियों की बाकियात ने माहौल ताफुनज़दा कर दिया। शहरी सब्जियों के साथ बीमारियां भी घरों को ले जाने लगे। हुकूमत ने बदामी बाग सब्जी मंडी को यकसर नजरअंदाज कर दिया। हल्की सी बारिश भी हो जाए तो सीवरेज सिस्टम बंद हो जाता है। ये सब्जियां नहीं बीमारियां खरीद रहे हैं यहाँ से, इसी गंदे पानी में धोते हैं, फिर वही घर लेके जाते हैं। ये पानी 10-10 दिन ऐसे ही खड़ा रहता है और ये पानी निकलेगा तो गटर का वापस आ जाएगा, इससे डबल वापस आएगा, 2 दिन वो नहीं गुजरेगा। बदामी बाग सब्जी मंडी में बारिश का पानी जमा होने से आड़ती मेन रोड पर सब्जियां रखकर फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मूसलाधार बारिश से कारोबारी मराकज़ भी पानी में डूब गए। बेडन रोड मार्केट और मॉल रोड में भी हर तरफ पानी ही पानी। ट्रांसपोर्ट के गुजरने की जगह ना पैदल चलने के लिए रास्ता बचा। कहीं मोटरसाइकिल बंद हुआ तो कहीं गाड़ी जवाब दे गई। हर जानिब पानी ही पानी। गलियों और चौराहों पर ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गई। रहायशी इलाकों के साथ कारोबारी मराकज़ भी पानी में डूब गए। बीडन रोड पर हार्डवेयर मार्केट भी बारिशी पानी से मुतासिर। सब कुछ पानी ने उथल पुथल कर दिया। ना ट्रांसपोर्ट पहुंची, ना कोई पैदल पहुंच सका। कारोबारी मराकज़ खुल ही ना सके। बीडन रोड से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि बारिश न हो तो गर्मी जान लेती है, बारिश हो गई तो भी फंस गए। इंतजामिया पता नहीं कहाँ है। सर बारिशें आपके सामने ही है। बारिश जब होती है तो इस तरह तमाम इलाका पानी में ज़ेरे आब हो जाता है। हुकूमत इस मामले में कोई सर अंजाम नहीं दे रही। ना वासा वाले वो आते हैं, बस इस तरह ही है। ना हमारे मुल्क में कोई निज़ाम है। वासा के बंदों का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। और मार्केट में देख सकते हैं आपके टोटली तौर पे मार्केट बंद है। लोगों की दुकानों में पानी गया हुआ है, बेसमेंट में पानी गया हुआ है, लोगों के मालों का नुकसान हो रहा है। माल रोड पर भी सूरत हाल ऐसी ही रही। माल रोड गवर्नर हाउस के सामने ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गई। कहीं मोटरसाइकिल बंद हुआ तो कहीं गाड़ी जवाब दे गई। मजीद बारिश मजीद मसाइल पैदा करेगी और इंतजामिया बस कोशिश ही करेगी। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खबरों शिकायत के अजाले के लिए हेल्पलाइन 1033 पर राबता किया जा सकता है। 1033 हेल्पलाइन है जहां पर शहरी राबता कर सकते हैं और अपनी शिकायत के हवाले से अपडेट कर सकते हैं। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर में पहले से कायम कंट्रोल रूम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिए गए हैं। कुछ बात कर लेते हैं मवेशी मंडी की। ईद गुरबा में गिनती के दिन बाकी। शाहपुर काजरा मंडी में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौर के बासियों की बड़ी तादाद कुर्बानी का जानवर लेने के लिए शाहपुर काजरा पहुंच गई। तेज़ बारिश के बायस मंडी में कीचड़ मौजूद, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से दाखिली रास्ता क्लियर कर दिया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से दाखिली रास्ता क्लियर कर दिया गया है, जबकि शहरियों की एक कसीर तादाद मंडी पहुंच चुकी है। व्यापारियों और शहरियों में भाव जारी है और हर कोई अच्छे से अच्छा और ख़ूबसूरत जानवर सस्ते दामों ख़रीदने की तगदो में है, जबकि व्यापारी भी अपने जानवर को महंगे से महंगे दामों फ़रोख्त करने में मसरूफ़ है। सूरत हाल क्या है ये बताएंगे हमजा खुर्शीद। जी बताइए।
मैं मौजूद हूँ शाहपुर कांजरा मंडी में और आज सुबह जो है वो शहर लाहौर में खासी तेज़ बारिश हुई, लेकिन उसके बावजूद जो है शाहपुर कांजरा मंडी में इस वक्त एक कसीर तादाद मौजूद है गाहकों की और उसके अलावा जानवरों की, जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि शहरियों को जो है वो हर सहूलत फराहम की जाए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि गुज़िश्ता रात जब बारिश हुई उसकी वजह से जो दूसरी आर्जी मंडियाँ हैं उनके भी जो जानवर हैं वो भी शाहपुर कांजरा का रुख कर चुके हैं, जिस वजह से इस वक्त जो है वो खासी ट्रैफिक देखी जा रही है। अगर मेरे अकब में आप देख सकें और मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो इस वक्त भी इंतज़ामिया जो है वो साफ़ सफाई के काम में जो है वो खासी मसरूफ़ नज़र आती है। उसके अलावा जो सामने वार्डन्स हैं वो भी ट्रैफिक क्लियर कराने में खासे मसरूफ़ नज़र आते हैं। इसके अलावा जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक को रवाना रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर शाहपुर कांजरा मंडी में मवेशियों और गाहकों का इस कदर रश है क्योंकि जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो खासी सुस्त रवी का शिकार है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तरीके से क्लियर कर लिया गया है और जितने बाड़े हैं उनको महफूज बना दिया गया है। उसके अलावा जो इस वक्त मंडी के अंदर पानी मौजूद है जिसका निकासियाब का मसला है वो सिर्फ एक ग्राउंड है जहाँ पर किसी भी किस्म की शहरी की आमदोरफ्त, यहाँ पर जानवरों की आमदोरफ्त नहीं है। उसके बारे में भी हमजा ये भी बताएगा कि व्यापारी और गाहक क्या इंतज़ामिया के इक़दामात से खुश नज़र आते हैं, और दूसरा ये भी बताएगा कि महंगाई का शिकवा करते भी नज़र आ रहे हैं। कि जो गाहक हैं उनका तो ये कहना है कि कीचड़ की जो वाक़यात हैं वो उनकी परेशानी का बाइस है, लेकिन उसके बावजूद जो गुजरने का राह है वो ज़रूर जो है उसको यकीनी बनाया जा रहा है और शहरियों को सहूलत फराहम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो महंगाई पर जो है वो गाहकों का ये कहना है कि रेट जो है वो खासे महंगे हैं, लेकिन जो महंगाई है क्योंकि वो ओवरऑल है इसलिए जहन बनाकर घर से आए थे कि जो जानवर हैं वो खासे महंगे मिलेंगे। अगर मैं व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारियों का ये कहना था कि जो सुबह बारिश की सूरत हाल थी उसको देखते हुए जो इंतज़ामिया का काम है वो खासा अच्छा है क्योंकि हमारे जानवरों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पर किसी भी किस्म की इंतज़ामिया ने अच्छा काम किया है। बहुत शुक्रिया हमजा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मूसलाधार बारिश के बायस निज़ाम मुतासर हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से मंडी का बैरूनी रास्ता क्लियर करवा दिया गया है, जबकि मंडी के अंदरूनी हिस्से में ताहाल गंदगी मौजूद है। व्यापारी अपने मवेशी लेकर बाहर सड़कों पर निकल आए हैं, जिसके बायस गंदगी मज़ीद बढ़ने लगी है। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन, अपडेट कीजिए। लाहौर की तूफ़ानी बारिश ने लाहौर की मवेशी मंडियों को भी शदीद मुतासर किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जो इस वक्त गंदगी का मंजर पेश कर रही है। अगर मेरा आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये बारिश के बाद की सूरत हाल है। बारिश के बाद ये इस कदर गंदगी यहाँ पर मौजूद है, जबकि तूफ़ानी बारिश के बाद जो व्यापारियों के मुतअद्दिद कैंप जो जानवरों के लिए लगाए गए थे वो भी उखड़ चुके हैं, जिसके बाद जो व्यापारी हैं वो इस गंदगी के ढेर में अपने जो जानवर हैं वो बांधने पर मजबूर हैं। जब ये जानवर यहाँ पर बांधे जा रहे हैं तो इसके बाद जो है वो जानवरों में बीमारी फैलने का भी खदशा जो है वो सामने आ रहा है। इस वक्त मेरे साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद बात करते हैं। सर, आप बताइएगा, तूफ़ानी बारिश के बाद इस किस्म की गंदगी है, आपको क्या मुश्किलात हैं? बहुत मुश्किल है, हमको बहुत चिक्कड़ है, कोई सफाई नहीं हो रही, हमारे जानवर बैठने से परेशान है, हम पानी पीने से परेशान है, ना पानी मिल रहा है ना बत्ती मिल रहा है, कोई बत्ती नहीं आ रही, इंतज़ामिया कोई चीज़ नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, हरे पट्टे नहीं मिल रहे, हमारे जानवर बैठने से परेशान है। एक शहरी मौजूद हैं जो जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, बारिश के बाद की सूरत हाल आपके सामने है, क्या मुश्किलात दरपेश हैं? दरपेश तो ये है कि चल भी नहीं सकते, कहाँ जाए जानवर खरीदने के लिए, हर जगह पानी खड़ा हुआ है, नीचे कीचड़ देखें कितना है, बंदा चल फिर के जानवर ही नहीं ले सकता, अपनी पसंद का जानवर नहीं ले सकता, क्योंकि जानवर जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ पर वहाँ तक अप्रोचेबल जगह भी नहीं है। जी बिल्कुल, आपने इन शहरी की भी बात सुनी, इनका यही कहना था कि गंदगी के बायस जो है वो घूम फिर भी नहीं सकते, जहाँ पर जानवर बंधा हुआ वहाँ पर गंदगी का इतना ढेर है कि वहाँ पर हम खुद भी नहीं जा पाते। पसंद का जानवर ख़रीदने के लिए शहरियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। जबकि आपको बताता चलूँ, शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से तो इंतज़ामिया की जानिब से जो है मुकम्मल तौर पर पानी निकाल दिया गया है, वो जगह साफ़ कर दी गई है। जबकि कैंप उखड़ जाने के बाद जो व्यापारी हैं वो बड़ी तादाद में अपने मवेशी लेकर जो है वो बाहर सड़कों पर आ गए, जिसके बाद इंतज़ामिया को भी अंदर की तरफ से जो है वो सफाई करने में खासी मुश्किलात जो दरपेश आ रही हैं। जी ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपका।
तेज़ बारिश के बायस कलमा चौक अंडरपास ज़ेर आब आ गया, जिसके बायस अंडरपास को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। पानी की निकासी के लिए आर्जी वाटर पंप बिजली के झटके बर्दाश्त नहीं कर सके। CBD के मुताबिक 8 क्यूसेक का नया पंप नस्ब कर दिया गया है। उम्मीद है रात तक पानी की निकासी कर ली जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात में बताएंगे शाहजेब शहजाद जी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कलमा चौक अंडरपास पे और कुछ दिन कबल या कुछ माह कबल ही जो है इस के मंसूबे का काम मुकम्मल किया गया और बाकायदा तौर पे इसका इफ्तिताह किया गया और 4 अरब 90 करोड़ की लागत के साथ ये मंसूबा बनाया गया था, जो कि सीधा कलमा चौक से फरदौस मार्केट की तरफ एक अंडरपास में से अंडरपास निकाला जाना था। इसी तरह एक अंडरपास के 2 अंडरपास निकाल के जो है वो ये मुकम्मल मंसूबा किया गया था और अब जैसे बारिश हुई है और उसके बाद ये मंसूबा किस हद तक कामयाब है वो अब आवाम के सामने ही है। जिस तरीके से ये जो अंडरपास है कलमा चौक का वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जबकि जो ज़राए से मौसूल हुई हैं मालूमात उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस अंडरपास के अंदर आर्जी जो वाटर पंप्स है वो नस्ब किए गए थे, क्योंकि बर वक्त जो अंडरपास के अंदर पानी की निकासी के लिए वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है वो वाटर पंप्स बर वक्त नहीं खरीदे गए थे, इसलिए आर्जी वाटर पंप्स जो है वो इस्तेमाल किए गए थे और रात को इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स के बायस जो है वो वाटर पंप्स जो आर्जी तौर पे नस्ब किए गए थे वो ख़राब हो गए, जिसके बाद यहाँ की निकासी नहीं की जा सकी। शाहजेब ये बताएगा कि SOP इस हवाले से क्या कहते हैं, क्या आर्जी पंप नस्ब किए जा सकते हैं और मुतल्लिका इदारों के आला हुक्काम का इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, उन्होंने क्या कहा, किन वजूहात की बिना पर आर्जी पंप लगाए गए थे? जी बिल्कुल, आर्जी पंप्स जो है वो इसलिए लगाए गए थे क्योंकि जो अंडरपास के अंदर वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है उनकी बर वक्त ख़रीदारी नहीं की गई थी, इसलिए वो नस्ब ही नहीं किए जा सके और आर्जी वाटर पंप्स इस्तेमाल किए गए जो कि इतना बर्डन नहीं इस्तेमाल बर्दाश्त कर सके और रात के वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट के बायस वो ख़राब हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसकी निकासी जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है। जबकि इस हवाले से CBD हुकाम जो है उनका ये कहना है कि 8 क्यूसिक का जो वाटर पंप है वो नस्ब कर दिया गया है ताकि वाटर पंप नस्ब कर दिया गया है ताकि पानी की निकासी की जा सके और आज रात तक मुमकिन है, उम्मीद है कि यहाँ से पानी निकाल लिया जाएगा, क्योंकि कलमा चौक अंडरपास मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद है। इस वक्त जो गार्डन टाउन जानिब से ट्रैफिक आती है जिससे फरदौस मार्केट जाना है वो वाली जो रूट की जो सड़क है वहाँ पे बिल्कुल पानी जमा हो चुका है और आपको मेरे कैमरामैन भी दिखा सकते हैं मेरे अकब पे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब के मनाजिर के किस तरीके से पानी यहाँ पे जमा हो चुका है और यहाँ से ट्रैफिक की जो रवानगी है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस वजह से अंडरपास को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है, जबकि CBD हुकाम का ये कहना है कि आज रात तक जो है वो पानी निकाल लिया जाएगा। इस वक्त जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो गटर और सैनिटेशन सिस्टम नस्ब किया गया था कलमा चौक अंडरपास के नीचे उसके ज़रिए जो है और 8 क्यूसिक का जो लगाया गया वाटर पंप उसके ज़रिए पानी की निकासी की जा रही है, शुरू कर दी गई है। जबकि आज रात तक यही बताया जा रहा है कि रात के पहर तक जो है वो पानी निकाल लिया जाएगा। ट्रैफिक का बुरा तरीन हाल है क्योंकि पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहती थी, इसीलिए यहाँ पे ये अंडरपास का मंसूबा बनाया गया और अब ये अंडरपास जो है वो ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो यकीनी तौर पे जो शाहराहें हैं जो इसके साथ लगती है वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव दिखाई दे रहा है। इसी तरह बात कर ले जाते हैं अगर अंडरपास से थोड़ा सा आगे की जानिब चले जाए लिबर्टी मार्केट की जानिब, वहाँ पर भी जो है वो पानी की निकासी नहीं की जा सकी और बुरे तरीके से जो है वो ट्रैफिक जाम है। 3 to 4 लेन ये रोड्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक लेन ही ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। सिर्फ अगर अंडरपास की बात कर ली जाती है तो फरदौस मार्केट की जानिब जाना कलमा चौक अंडरपास से वो नामुमकिन हो गया और इसके लिए एक डाइवर्जेंस लगाई गई है। डाइवर्जेंस के जरिए ट्रैफिक को बहाल रखा जा रहा है, जबकि ये बताया जा रहा है ज़राए से शुक्रिया शाहजेब। कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास शहर में जारी तरक्याती मंसूबों और ईद-उल-अज़हा सफाई ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। कहते हैं तमाम इदारों के ऑफिसर्स अवामी नुमाइंदों से करीबी राबते रखें, तरक्याती कामों में उनकी मुशावरत और राय को तरजीह दिए जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि अहमद हसन जो कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। शहर में जारी तरक्याती मंसूबों और ईद-उल-अज़हा सफाई ऑपरेशन पर तबादला ख्याल किया गया है। इजलास के मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ख्वाजा अहमद हसन की जानिब से कहा गया कि तमाम इदारों के ऑफिसर्स अवामी नुमाइंदों से करीबी राबते रखें। इजलास के अहवाल बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान।
हाँ जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ख्वाजा अहमद खान की ज़ेर सदारत शहर लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों और ईद उल अज़हा में सफाई ऑपरेशन पर आज इजलास हुआ है। इजलास में मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली महर इश्तियाक अहमद, मियां मरगूब अहमद, सैयद तौसीफ शाह, गजाली सलीम भट्ट, रमजान सदीक भट्टी, राबिया फरूकी, चौधरी शहबाज अहमद और सरकारी इदारों के अफसरान ने शिरकत की, जहाँ पे CO LWMC ने ब्रीफिंग दी। बाबर साहब जिनका कहना था कि तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, सफाई के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो वेस्ट बैग हैं वो शहरियों के घरों में जाना शुरू हो गए हैं। 274 कैंप्स लगा दिए गए हैं, जिस पर ख्वाजा अहमद खान का कहना था कि तमाम इदारे अफसरान अपने इलाकों के अवामी नुमाइंदों से करीबी रब्ता रखें, जबकि तरक्याती कामों में इनकी मशावरत भी और राय भी ली जाए और उनको तरजीह दी जाए। जबकि इस साल भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन माजी की तरह कामयाब किया जाएगा। इस तरह की मशावरत और तरक्याती कामों की निगरानी जारी रहेगी और मौजूदा सूरत हाल में ईद की आमद है, बारिशों का स्पेल भी जारी है और बारिशों के स्पेल के लिए वासा को भी हिदायत कर दी गई है और इसी सूरत हाल में तमाम महकमे जो है अपना लाइजून जो है अच्छी तरीका बरकरार रखे ताकि शहरियों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ईद उल अज़हा से कबल जो है वो सफाई ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल में तमाम सफाई की तैयारियों के लिए तमाम महकमों को अलर्ट रहना पड़ेगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने इंसदाद डेंगू मुहिम तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी है। फौरी तौर पर निकासियाब का बंदोबस्त किया जाए, जमा शुदा पानी को फौरी निकाला जाए, पार्क ग्राउंड में से घास ख़त्म की जाए, ये हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही बारिशों के सीज़न का आगाज़ हुआ है और तूफ़ानी बारिशें लाहौर में भी देखी गई हैं, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटी और अलाइड महकमा जात को ये हदायत की हैं कि डेंगू मुहिम जो है उसको तेज़ किया जाए, जो प्रेमिसेस है वहाँ पर निकासियाब का बंदोबस्त किया जाए, जहाँ कहीं पानी जमा है उसको फौरी तौर पर निकाला जाए, जो कार कबाड़ है उसको ठिकाने लगाया जाए, पार्क और ग्राउंड जो हैं वहाँ से घास को जो है काटा जाए और इसके साथ साथ इस इंसदाद मुहिम जो है डेंगू की, इसकी रोजाना की ठीक है, आतिफ अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। LDA में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 5 बाबर अकरम को डेप्टी डायरेक्टर हाउसिंग 7 तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 4 कमर ज़हूर की खदमात हाउसिंग 7 के सपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट स्टेट मैनेजमेंट PHS कासिम रज़ा को हाउसिंग 7 में तैनात कर दिया गया है। अहम तकर्रुर और तबादले हैं LDA में, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। LDA में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं, नोटिफिकेशन की कॉपी भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इस हवाले से बताएं कि असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 5 बाबर अकरम को डेप्टी डायरेक्टर हाउसिंग 7 तैनात कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हाउसिंग 4 कमर ज़हूर की खदमात हाउसिंग 7 के सपोर्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट PHS कासिम रज़ा को हाउसिंग 7 में तैनात कर दिया गया। जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह, हुमा शाह, आरिफ सईद, रिजवान ज़िया की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं, जबकि जस्टिस अली बाकर नज़वी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया है। चारों मुल्जिमान ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की थी। जिन्ना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह, हुमा शाह, आरिफ सईद, रिजवान ज़िया की दरख्वास्तें खारिज कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी बताइए। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने खतीजा शाह, हुमा शाह, आरिफ सईद और रिजवान ज़िया की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नज़वी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन चारों मुल्ज़िमान की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। दौरान समाअत पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर निहान ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इन चारों मुल्ज़िमान का ट्रायल शुरू हो चुका है और इस हवाले से मुल्ज़िमान का ट्रायल लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की हुसूसी अदालत में जारी है, जहाँ पर मुल्ज़िमान ने दरख्वास्त जमानतें भी दायर कर रखी हैं, लिहाजा ये दरख्वास्तें गैर मौखर हो चुकी हैं। अदालत इन दरख्वास्तों को खारिज करे। दौरान समाअत मुल्ज़िमान के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 9 मई के वाक़े के बाद इन चारों मुल्ज़िमान को नज़रबंद किया गया और नज़रबंदी कलअदम होने के बाद साथ ही इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस दौरान जब शनाख्त प्लेट के लिए ले जाया गया तब भी कोई ज़वाबत पूरे नहीं किए गए। ठीक है मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।
बारिश पानी के निकास के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर हाजी कैंप ट्रेन की तमीर का मंसूबा 6 माह से बांदवासा के प्रोजेक्ट पर पंजाब हुकूमत मेहरबान हो गई। 6 साल से इल्तवा का शिकार हाजी कैंप ट्रेन के लिए बजट में मुकम्मल फंड्स देने की मंजूरी। मंसूबे के लिए 3 अरब 10 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि बारिशी पानी के निकास के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर हाजी कैंप ट्रेन की तमीर का मंसूबा 6 माह से बांदवासा के प्रोजेक्ट पर पंजाब हुकूमत मेहरबान हो गई है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम महफूज ईद उल अज़हा और हज के इन्वान से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने शिरकत की। कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद आवाम को ख़तरनाक बीमारियों से बचाना है। ईद उल अज़हा के मौके पर ख्वाहिशात को कुर्बान करके सेहत को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। सज्जाद बताइएगा। बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर मजीद कहा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का जो बुनियादी मकसद है उसमें अवाम को आगाही फैलाना है। हमें ईद उल अज़हा के मौका पर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी करके सेहत को यकीनी बनाना है और इसी तरह जो अफराद हज की सादत हासिल करने गए हैं वो भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और पाकिस्तान होने पर फख्र है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में 23 से जायद चैप्टर्स हैं। PSIM परसों गुजरात में शुगर के मरीजों के लिए आगाही सेमिनार मुनक्कद कर रही है और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन आपका क्लिनिक के नाम से मुफ्त क्लिनिक भी चला रही है। आपका क्लिनिक पर